بالکل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کا حکم مانو۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اے ایمان والو۔ ہم امت محمدیہ ہیں، اور جتنے پیارے لقب سے پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو پکارا ہے، اتنے پیارے لقب سے پروردگار نے کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا۔ اللہ اللہ۔ بنی اسرائیل کو پکارا تو فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اللہ نے قوم نوح کو پکارا تو فرمایا اے قوم نوح۔ کسی کو پیغمبر کے نام سے پکارا، کسی کو بستی کے نام سے پکارا، کہیں فرمایا اصحاب الاخدود، کہیں فرمایا اصحاب ایکا۔ پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو جب پکارا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ اللہ۔ مفسرین کرام فرماتے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے قرآن میں، وہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ کی امت مراد ہے۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، ان چاروں حرف کو ہم بغور دیکھیں تو یہ چاروں حرف ہم کو الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ پہلا حرف ہے حمزہ، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون، چوتھا حرف ہے واو۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ آمنو میں پہلا حرف حمزہ، لیکن آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو الف لگے گا، ہے نا؟ حالانکہ الف اسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ آئے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پہلا حرف ہے حمزہ یعنی الف، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون، چوتھا حرف ہے واو۔ یہ چاروں حرف ہم کو الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ الف حمزہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانو، میم کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ کو مانو، نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو، اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو۔ ایمان والا وہی ہے۔ تو اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے گا، کیا ہم واقعی سارے ولیوں کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی سارے نبیوں کو مان رہے ہیں؟ اب آگے بڑھے۔ اطیع اللہ، حکم مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کا، فرما برداری کرو اللہ کی۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو رسول اللہ کا۔ آج ہم صحیح معنی میں دیکھیں تو کیا ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے تو آج ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی۔ آج ہماری مسجدیں سونی ہو گئی ہیں۔ مسجد کے باہر 10-15 لوگ بیٹھ کر کے باتیں تو کرتے رہیں گے، 10 منٹ نماز میں لگتے لیکن اللہ کی عبادت کرنے نہیں جاتے۔ قرآن میں رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، لیکن آج ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں۔ آج جو ہم پریشان ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے رسول ہم سے ناراض ہیں۔ بے شک ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کے رسول راضی ہو گئے تو پھر دنیا میں جب تک رہیں گے آرام سے رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہیں گے، اور میدان حشر میں بھی ہم آرام سے رہیں گے، اور جنت میں جب جائیں گے تو یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اطیع اللہ، اللہ کا کہنا مانو۔ اپنے وجود پہ غور کرو، اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر۔ پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا،
मेरा रब चाहता तो हमको जानवर बना देता, मेरा रब चाहता तो हमको कीड़े मकोड़ों में पैदा कर देता। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको अशरफुल मखलूकात बनाया, खूबसूरत सूरत से नवाजा हमको। उस अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमको इंसान बनाया, उसने हमको आंखें सलामत दी, उसने हमको किडनियां सलामत दी, उसने हमको हार्ट सलामत दिया, उसने हमको हाथ सलामत दिए, उसने हमको पैर सलामत दिए, उसने हमको जुबान सलामत दी, उसने हमको कान सलामत दिए। ये हाथ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं। ये हार्ट अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके हार्ट की सर्जरी हो चुकी हो। ये किडनियां कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसकी किडनियां रोजाना डायलिसिस पे जाती है। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास बोलने की ताकत नहीं। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। दिल करता है कि अपने बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है माँ बाप का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने भाई बहनों का चेहरा देख लेता। आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आज़ा सलामत दिए, उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमको आंखें सलामत दी, उसका कितना बड़ा एहसान है। और आज हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खूबसूरत बीवी से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको औलाद से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमको मकान से नवाजा, अल्लाह ने हमको प्रॉपर्टी से नवाजा, अल्लाह ने हमको जायदाद से नवाजा, अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा। कभी तुमको लगे कि हमारे ऊपर अल्लाह के कितने एहसान हैं, तो अजमेर शरीफ चले जाया करो, दयारे गाजी में चले जाया करो। तुमको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे सामने हाथ फैला करके भीख मांगते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके हाथ पैर कटे हुए और वो भीख मांगते नजर आते हैं। अल्लाह ने तुमको देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। कितना बड़ा एहसान है मेरे रब का। उस रब ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के खाने हमको अता किए। सिर्फ एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए कि अगर मोटे चावल से पेट नहीं भरता तो बारीक चावल खा के पेट भर ले, अगर बारीक चावल से पेट नहीं भरता तो 11-21 का चावल खा करके तू अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की हमको दालें अता फरमाई। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता फरमाई। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। कितना एहसान है उस रब का। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फिर से मुक़द्दर, फिर से मुक़द्दर, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने सर छुपाने के लिए हमको छत अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जाड़े और गर्मी को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने रोशनी के लिए चांद और सूरज को पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ग़िज़ाओं को पैदा फरमाया। कितना बड़ा एहसान है उस रब का, और हमने कितना उस रब का शुक्र अदा किया। आज हमारी मस्जिदें सूनी हो गई, आज हमने हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया। आज हमारे घरों का जायजा लिया जाए तो 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता हमारे कि आज रब का अता करदा कुरान हम घर में बैठ करके उसकी तिलावत कर ले। रब ने जो अपने महबूब पे कुरान नाजिल फरमाया है, उस कुरान की हम तिलावत कर ले। कितने एहसान है उस रब के। आज घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। आज हमारे घरों में कुरान इतने ऊपर रख दिया है कि आज हमारा वहां हाथ तक नहीं पहुंचता। मैंने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां पढ़ी थी दुर्रे मंसूर में, सूरह मोहम्मद की तफसीर में। उसमें से 3 निशानियां मैं आपको बताता हूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कुर्ब क़यामत सुब्बिरतिल मसाजिद, मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, मस्जिदों में बेहतरीन सजावट होगी और नमाजियों की ग़िज़ा से मस्जिदें खाली होंगी। आज देख लो मस्जिदें कैसी सजी हुई है। नबी ने फरमाया था हुज्जतिल मसाहिब, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे लेकिन कुरान की तिलावत करने वाले नहीं होंगे। तुब्बिलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे, मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे और दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। आज अगर जायजा लिया जाए, आज हम जो रोना रोते हैं ना कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, आज हम अपने रब तबारक व तआला की इबादत नहीं करते। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहीशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। अभी तुमने देखा नहीं, चंद दिन गुजरे हैं मुसलमानों, अपनी हालात पे जरा गौर करो। मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम आओ तो सही, रब ने कुरान में वादा फरमाया है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। आज हम सही माना में मुसलमान बने। मुसलमान की तारीफ क्या है? मुसलमान कहते किसको है? नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना अपने मुसलमान भाई को हाथ से तकलीफ दे, ना अपनी जुबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ दे। आज भाई भाई की बुनियाद खोखली करने के लिए तुला हुआ है, आज भाई भाई की तरक्की से जलता है, आज भाई भाई का पैसा देख करके चल रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। आज हम बजाय अपने भाई को मजबूत करने के, आज हम उसको कमजोर करते हुए नजर आते हैं। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। न तो हम आज अल्लाह का कहना मान रहे हैं, न हम रसूलुल्लाह का कहना मान रहे हैं। अब इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया को राजी करने के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। जब कानों में अजान की आवाज आए तो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, दुनिया में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह है वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो दरियाए नील की शाख दरियाए कुलजुम में डिबो करके मार दिया। अल्लाह वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और जब उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक ना देख सका। रब ने हुक्म दिया इसकी रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह घोड़े से नीचे गिरा। अल्लाह है जिसने कारून को खजाना दिया, दौलत दी, माल दिया और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल तो एक लफ्ज बोला था कारून ने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब हमसे पैसा मांग रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अबू जहल को मक्के के एक कबीले की सरदारी मिली, उसने जब उसके महबूब को सताया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दो छोटे छोटे बच्चों से बनवा दिया। यजीद को भी शख्सी हुकूमत मिली थी और यजीद ने जब आले नबी को सताया या आले नबी को शहीद करवाया, अल्लाह ने दर्द कौलैन जिसे उसको मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुको तो सही, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, फिर दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे पैगंबर तुमसे राजी हो जाए, तो आओ अपनी पेशानियां सजदे में झुका दो, कुरान की तिलावत
तिलावत करो। अब 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, लेकिन कभी बैठ कर के हम कुरान की तिलावत नहीं करते। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज के बाद में नबी पे दुरूद और सलाम पढ़े। वही हर वक्त हमारे घर में इलेक्शन की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में फिल्मों की बातें, वही हर वक्त हमारे घर में सियासत की बातें। ये हालात आज हमारे घरों के हो गए, दीन हमारे घरों से उठ गया, शरई माहौल हमारे घरों से उठ गया, इसीलिए आज हम परेशानियों के शिकार हो गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह राजी हो गया, उसका रसूल राजी हो गया। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह का कहना मानो। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर कोई तुझसे ये कहे कि तू नबी का आशिक है या नहीं तो खामोश हो जाना, कुछ मत बोलना। अगर ना करता है तो ईमान चला जाएगा, और अगर हाँ की तो मुनाफिक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि नबी का आशिक और वो अपनी दाढ़ी मुंडाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी का आशिक और उसका लिबास इस्लामी नहीं, नबी का आशिक और गलियों में गाने सुनता हुआ फिरे, नबी का आशिक और मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देखे। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते थे, नबी के आशिक तो वो थे जिनका कहना था कि कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देव से लड़ जाएं, सनाने नेजा बनकर सीने बातिल में गड़ जाएं। वो नबी के आशिक थे। आओ मैं एक आशिक की बात आपको बताऊं। हजरत अम्मार बिन यासिर का नाम आपने सुना होगा, नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं हजरत अम्मार इब्न यासिर। माँ ने कहा कि बेटा तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, बाप ने कहा बेटा कलमा पढ़ना छोड़ दे, लेकिन हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा कि ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ तो मेरी मोहब्बत में आकर के ये कलमा पढ़ना छोड़ देगा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन गुजर गए तो हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते माँ तेरा एहतराम मेरे दिल में है, लेकिन इतना याद रखना तू पूरी जिंदगी भी खाना नहीं खाएगी तब भी मैं अपने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा ने सोचा कि अब ये किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। कुफारे मक्का ने मशवरा करके एक आग जलवाई और आग जलाने के बाद में हजरत अम्मार इब्न यासिर को उस आग के अंदर डाला जा रहा है। मेरे आका गुजर के जा रहे थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर आग में पहुंचने वाले थे। आवाज देते या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफा ने अपने आशिक को देखा, दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। सुभान अल्लाह। वो दस्ते मुबारक आला हजरत पुकार के फरमाते इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठे। आका दुआ करते हैं या नारो कुनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुनते अला इब्राहिम। ये आग तू मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आग ठंडी हो जाती है। हजरत अम्मार इब्न यासिर आग के अंदर काफी देर रहे, फिर उसके बाद बाहर निकल करके आते हैं। कुफारे मक्का ने देखा कि इनको आग ने नहीं जलाया, तब लालच रखा हजरत अम्मार इब्न यासिर के सामने और कहा ए अम्मार इब्न यासिर तुम जितनी दौलत कहोगे तुम्हारे कदमों में ला करके बिछा देंगे, तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी चाहोगे हम उस कबीले का तुम्हें सरदार बना देंगे, बस एक शर्त है कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो।
दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जवाब सुनो, नबी के आशिक का जवाब सुनो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, एक कुफारे मक्का सुनो, अगर पूरी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में बिछा दो तब भी मैं अपने नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, उनका मनता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मनता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, लगती है कितना वकार। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उसे हजरत पीर जागीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नबी के आशिक हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये नबी के आशिक हैं, ये नबी के दीवाने हैं, ये नबी के जानिसार हैं। देखो नबी की मोहब्बत उनके दिल में कैसी थी। आज तारीख उठा करके देखो, आज हम सिर्फ नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं और नारा लगाएंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अगर मामला आ जाए तो एक नजर नहीं आएगा। ये हाल है हमारा। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह क्या है? वजह वही जो डॉक्टर इकबाल ने कही कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई पे इक्तिदार। आज हम रसूलुल्लाह का कहना नहीं मान रहे, आज हम अपने आका का कहना नहीं मान रहे हैं। अरे नबी के आशिकों की तो शान अलग होती है, नबी के दीवानों की शान अलग होती है। आज वो कौम क्या जाने कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। जो 2.5 घंटे की फिल्म में बैठ के देख लेती, लेकिन नबी के जिक्र की महफिल में 2 घंटा नहीं बैठती। आज वो नौजवान क्या जाने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियां उठाई इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए ना, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले तो रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवार तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों, मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, मैं तो तुमको जन्नत का रास्ता दिखा रहा हूं, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे। ये नहीं कहा मेरे आका ने, मेरे आका हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध के मारा कि मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा, खून निकल आया नबी की मुकद्दस पेशानी से। अल्लाह अल्लाह। वो मुकद्दस पेशानी आला हजरत पुकार के फरमाते, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। खून निकल रहा था, मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। हमने वो वक्त भी देखा है कि बेटा अगर बाहर कमाने चला जाए और इधर बाप की तबीयत खराब हो जाए तो बेटे को फोन किया जाए तो वो 1-2 दिन लगा सकता है आने में, लेकिन बेटी एक ऐसी है जिसके दिल में अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी, अगर पता चल जाए कि उसके बाप की तबीयत खराब है तो अगर 50-100 किलोमीटर दूर भी होगी तो अपने बाप को देखने के लिए आ जाएगी। बेटियों के दिल में बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, खून पसीना बहाता है अपनी औलाद के लिए। और बेटी अल्लाह की ऐसी नेमत है। हमने देखा बुढ़ापे में माँ बाप को जब औलाद लड़के घर से निकाल देते तो ये बेटियां हैं जो पूरी जिंदगी अपने बाप को अपने घर पे रख करके खिलाती हैं और कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती।
बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुकद्दस पेशानी पर हजरत फातिमा की नजर पड़ी तो रोने लगी। उनकी आवाज सुन के और शहजादियां आ गईं। शहजादियों के रोने की आवाज सुनकर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आ गईं। देखा कि नबी की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। अपने दुपट्टे को फाड़ा, पानी में भिगोया और मेरे नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन थी, उनका एहसान है आज हमारे ऊपर। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह आप इस्लाम की तबलीग करें, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते वो ताइफ का मैदान में आज तक नहीं भूला। मेरे आका जब ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो जालिमों ने वहां पर पत्थरों की बारिश कर दी मेरे नबी पर। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता, उस पाए मुबारक को जमीन पे रखते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। मेरे आका की बारगाह में हवा का फरिश्ता आया। अर्ज करता या रसूल अल्लाह आप हमको इजाजत दें, हम पहाड़ों से टकरा के इनको मार दें। मेरे आका की बारगाह में पानी का फरिश्ता आया। कहता हुजूर पानी पर मेरी हुकूमत है, आप इजाजत तो दे मैं इतना पानी बरसाऊं यहीं डूब के मर जाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दो, ये ताइफ पहाड़ों के तो बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूँ, दोनों ये भी यहीं पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जिब्राइल मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियां उठाई, कितनी मुसीबतों का सामना किया मेरे आका ने। अभी आपने ये साहब से वो आला हजरत का कलाम सुना ना, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। उसमें एक शेर आपने सुना होगा कि ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। जब सन हिजरी 8 में नबी ने मक्के को फतह किया, 10,000 का लश्कर लेके जब नबी मक्के में फातिहाना शान से दाखिल हुए तो जिन्होंने नबी को सताया था घरों में डरे सहमे बैठे थे, कह रहे थे आज कोई नहीं बचेगा, आज मोहम्मद चुन चुन करके बदला लेंगे। और तरीका भी हमारे यहाँ का ये है कि अगर कोई किसी को सता दे, कोई किसी को परेशान करे या कोई किसी पे जुल्म कर दे तो आदमी सबसे पहले उसे तलाश करता है। अगर पावर में आ जाए, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, किसी ने किसी को सताया और इत्तेफाक से वो चेयरमैन बन गया तो सबसे पहले उसे तलाश करता है जिसने उस पे जुल्म किया है, उसके परिवार पे जुल्म किया है। सही अल्लाह अकबर, ये हाल है आज दुनिया का। कौन ऐसा है जो इन जुर्मों पे सजा ना करे, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाए और वो बदला ना ले, जिसके पीठ पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाए और वो बदला ना ले, जिसके गले में चादर का फंदा डाला जाए और वो बदला ना ले, जिसको सताया जाए और वो बदला ना ले। अल्लाह अकबर, ऐसा कोई है ला करके दिखाओ। मदीने वाले मुस्तफा जब मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो आपने अपने लश्कर को खिताब फरमाया, मेरे लश्करियों सुनो, दरख्तों को नहीं काटना है, किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे नबी ने फरमाया और फातिहाना शान से नबी दाखिल हुए, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन करके मारने का दिन है। नबी ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ये क्या कह रहे हो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है। ये ना कहो बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। मेरे आका ने कुफार मक्का से फरमाया, तुम लोग मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? उन्होंने कहा हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप तो करीम है, आप तो माफ करने वाले हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला
तस्रीब अलैकुमुल यौम, तो आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना। तकबीर, मशरक़े आला मशरा और अहले सुन्नत खलीफे हुजूर हसन मिल्लत उसे पीर जहांगीर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान और ये है नबी के आशिक, ये है नबी के दीवाने। देखो मदीने वाले मुस्तफा को कितना प्यार है, मदीने वाले मुस्तफा को कितनी मोहब्बत है हमसे। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज कौम के नौजवान फिल्मों में मस्त हो गए, आज कौम के नौजवानों ने शराब के अड्डों को आबाद कर दिया, आज मेरी कौम के नौजवानों ने चूहे के अड्डों को आबाद कर दिया। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते, कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते, कौम आद में पैदा हुए होते तो कब के नामो निशान मिटा दिए गए होते, अरे कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के बंदर खिंजीर बना दिए गए होते। ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का, ये अतिया है मदीने वाले मुस्तफा का। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब अल्लाह की शायान शान नहीं है अल्लाह उस कौम को अजाब दे जिसने आप तशरीफ फरमा हो। नबी के सदके में अजाब उठा दिया गया, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में अजाब उठा दिया गया। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बइन, बंदा कयामत के दिन हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। 4 सवाल होंगे उससे कयामत के दिन, जब तक जवाब दे नहीं देगा 1 इंच नहीं हट सकता। परवरदिगार आलम पहला सवाल करेगा उससे, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, उससे उम्र के बारे में पूछा जाएगा। ये जो उम्र मिली है ना, हमको जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। ये जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी है, ये उम्र तुमने कहाँ गुजारी है। और ऐ नौजवानों आज सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, व अन शबाबिही फीमा अबलाहु, नबी फरमाते हैं जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानों से उनकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। जवानी जो दीवानी होती है उसे तुमने कहां पर गुजारा है? आज मोबाइल की स्क्रीन पे जवानी गुजारने वालों, व्हाट्सएप और फेसबुक की नजर करने वालों, इतना याद रखना, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, लोगों से उनकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि ये उम्र तुमने कहां गुजारी है। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी तुमने कहां गुजारी है। क्या कहोगे शराब की दुकान पे जवानी गुजारी, क्या कहोगे जिना के अड्डे आबाद करके जवानी गुजारी, क्या कहोगे कि अय्याशियों के अड्डे आबाद करके जवानी गुजारी। इस जवानी में अल्लाह की इबादत कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में और किस जगह आ जाए। हमने उन लोगों को भी देखा जो तमन्नाएं लिए बैठे थे कि इतने साल जिएंगे, ऐसी बीमारी लगी कि चंद दिनों में दुनिया से चले गए। ऐसे ऐसे दौलत वाले भी हमने देखे जिनको दौलत पे नाज था, कभी कारों में घूमते थे, आज पैरों में चप्पलें तक नसीब नहीं है। मौला अली शेर खुदा फरमाते, सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा ना करे, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। हर चीज हर मामले में परवरदिगार आलम से डरते रहना चाहिए। अल्लाह जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, मेरा रब जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। तुमने देखा नहीं 3-4 साल पहले कैसे कोरोना का माहौल था, हर कैसे दुनिया का हाल हो गया था। तुमने देखा नहीं कैसे जनाजे उठ रहे थे, अरे गंगा नदी के किनारे जाने कितने दौलत वाले ऐसे ही पड़े रह गए जिनके चेहरा देखने उनके घर वाले तक ना आए। तुमने देखा नहीं बड़े बड़े पैसे वाले बिल्डिंगों में रहने वाले, उनके जिस्म बगैर कपड़े के पड़े हुए थे। तुमने हालात नहीं देखे क्या हो गए थे। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो और आपस में मुत्तहिद होकर के रहो। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, परवरदिगार आलम ने तुमको दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए भेजा है, इसलिए मस्जिद
مسجدوں کو آباد کرو. آج تو ان اللہ والوں کو یاد کیا جا رہا ہے. ہر ایک کا مرنا برابر نہیں ہوتا, ہر ایک کا دنیا سے جانا برابر نہیں ہوتا. موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس, موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے, موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے, لیکن ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا, ہر ایک کی موت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے. ارے شرابی کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ جواری کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ عیاش کی موت پہ کون آنسو بہائے گا؟ دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضے والے کرنے والے کے لیے کون آنسو بہائے گا؟ ارے دنیا میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا لوگوں کو ستانے والا چلا گیا, اچھا ہوا علماء کی توہین کرنے والا چلا گیا, اچھا ہوا مدرسوں کی برائی کرنے والا چلا گیا. اور کچھ جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں, دیکھا نہیں تم نے ابھی 4-5 سال پہلے بریلی شریف سے ایک جنازہ اٹھا تھا, کروڑوں آدمی بریلی شریف کی سرزمین پر آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کر کے گنبد خضرا کی طرف یہ رخ کر کے کہہ رہے تھے کہ اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی قریہ قریہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ, کون بنا مہمان کعبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. دیکھ لو میرے غازی کو جامع شہادت نوش کیے ہوئے کتنے سال کا زمانہ گزر گیا, 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا. غوث اعظم کو پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا. غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے 800 سال کے قریب وقت گزر گیا. صابر کلیری کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے. ارے تم دیکھتے نہیں, دیکھو اتنا یاد رکھنا, 1 سال نہیں ہوتا اولاد باپ کو بھول جاتی ہے. تم نے دیکھا نہیں, باپ بیٹے کو بھلا دیتا ہے, بیوی شوہر کو بھلا دیتی ہے, رشتہ دار کو بھلا دیتا ہے, پڑوسی کو بھلا دیتا ہے. لیکن یہ اللہ والے جو دنیا سے گئے ہیں, ہر سال تم جہانگیر شاہ بابا کا عرس کرتے ہو, ادھر بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی کا کبھی یوم ولادت منایا جا رہا ہے, کبھی یوم شہادت منایا جا رہا ہے. دیکھتے نہیں, آج رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت ہونے والا ہے, لیکن تم نے دیکھا نہیں ہے آج آدمی 1 گھنٹہ کسی کے گھر نہیں بیٹھنا پسند کرتا ہے, لیکن تم 2-3 گھنٹے یہاں بیٹھ کر کے اللہ والوں کا ذکر سن رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے یہ دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کو راضی کر کے گئے, رسول کو راضی کر کے گئے. من کانا للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہے. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے. لوگ پھر اس کو یاد رکھتے ہیں, اپنی گفتگو میں یاد رکھتے ہیں, اپنی محفلوں میں یاد رکھتے ہیں, اپنی خلوتوں میں یاد رکھتے ہیں, اپنی جلوتوں میں یاد رکھتے ہیں. دیکھو سید سالار مسعود غازی کو اولیاء کرام ان کا ذکر کرتے ہیں, علماء کرام ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھا نہیں تم نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی ہے, جن کا مزار مالدہ ٹاؤن پنڈوا شریف میں ہے بنگال کے اندر. وہ 3 مہینہ پیدل چل کر کے بہرائچ میں آئے, 3 مہینہ قیام کیا, واپس 3 مہینہ جانے میں لگا. کسی مرید نے کہا حضور جوتا پہن لیجئے گا, حضور سواری کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا جوتا اور سواری اگر میں کروں گا تو غازی پاک کو سفر کی کلفتیں کیسے بتاؤں گا؟ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے. آؤ دیکھو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس بارگاہ میں حاضری دینے آئے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں ایک دن ایسی قسمت نے یاوری کی کہ ایک دن میں تھا غازی پاک کے آستانے پر, سید افضل الدین ابو جعفر امیر مہد آستانے پر, اور حضرت خضر علیہ السلام تھے اور چوتھے سید سالار مسعود غازی تھے. یہ وہ بارگاہ ہے. اسی لیے دنیا پکار کے کہتی ہے زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی. جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں, نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مسعود غازی, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. دیکھا نہیں مخدوم بہار
कुतुब देहात हजरत सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो कुरान का हाफिज होगा, किराते सबा के साथ में कुरान का हाफिज होगा और सैयद सहीहुन नसब होगा, बादशाह छोड़ के आया होगा। लोग जब इंतजार करने लगे कौन है जो जनाजे की नमाज पढ़ाए, लोग उनके खुलफा की तरफ देखने लगे, आप पढ़ाएंगे? कहा नहीं, हजरत ने ऐसी वसीयत फरमाई है। आ रहे थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, सिमनान की बादशाह छोड़ करके, एक बार कुर्सी मिल जाए अगर गांव में हमको तो आदमी यही चाहता है कि ये कुर्सी मेरे पास से न जाए, इस कुर्सी पे मैं ही बैठा रहूं, है कि नहीं है ये तरीका आदमी का। लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को, देखिए आप सिमनान के बादशाह थे, 18 साल की उम्र में बादशाह बने, 23 साल तक आप बादशाह रहे, लेकिन आपने जो है बादशाहत को छोड़ दिया, मजा नहीं आया, हुकूमत को छोड़ दिया, बादशाहत अपने दूसरे भाई सैयद मोहम्मद आरफ को देकर के आप आ गए और तनहा निकले। माँ ने कहा था बेटा एक मेरी बात मान ले, तू छोड़ना चाहता है ना हुकूमत? कहा हाँ माँ, मुझे इसमें मजा नहीं आता। तो माँ ने कहा बेटा एक मेरी बात मान ले, बेटा जब तू जाए ना मुझको छोड़ करके और अपने मुल्क को छोड़ करके, तो बेटा बड़े शाहाना शान से जाना मेरे लाल, ये लश्कर तुझे छोड़ने के लिए जाएगा शहर के बाहर तक, ताकि लोगों को पता चले मेरा बेटा एक जिहाद पर गया है, ताकि लोगों को पता चले मेरा बेटा जो है किसी अहम मुहिम पर निकला है। कहा ठीक है माँ, शहर के बाहर तक लश्कर छोड़ने के लिए आया, बाकी सब लोग वापस हो गए, लेकिन 2 गुलाम वापस नहीं हुए, बोले नहीं हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। गाजियाबाद के सब हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के साथ में वो घोड़ा लेकर के चलते रहे। रास्ते में उनसे कहा कि आराम करो, जब वो आराम करने लगे तब मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सोचा कि इनकी वजह से मुझे जहां चाहूंगा वहां कयाम करना पड़ेगा, इसलिए मेरे मखदूम पाक ने उनको भी छोड़ा और तनहा निकल गए, तनहा निकल गए, फकीराना लिबास पहन लिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। 2 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और दूसरे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। इब्राहिम बिन अदहम ने भी बादशाहत को छोड़ दिया था, समंदर के किनारे आकर के अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन वजीर गुजर के जा रहा था, उसने देखा, पहचान लिया ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम है, कहने लगा हुजूर पहचाना? फरमाया कौन है, क्या बात बता? कहता है मैं आपका वो वजीर हूँ जो आपके दाहिनी जानिब खड़ा रहता था, आपका राइट हैंड था मैं। तो आपने फरमाया फिर? कहता है हुजूर क्या मिला बादशाहत छोड़ के, क्या मिला सल्तनत को छोड़ के? मेरे आका हजारों गुलाम आपके इर्द गिर्द रहते थे आपका कहना मानने के लिए, मेरे सरकार आपने बादशाहत छोड़ के क्या कमाया? यहाँ फकीराना लिबास पहन के, गुदड़ी पहन के समंदर के किनारे भूखे प्यासे पड़े हो, क्या मिला बादशाहत छोड़ के? वहां पर बेहतरीन गिज़ाएं खाने को मिलती थी, ऐशो आराम में लेटते थे, नरम नरम गद्दों पे सोते थे। तब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया देखना चाहता है क्या मिला मुझे? अपना लिबास सी रहे थे सुई से, उस सुई को समंदर के अंदर फेंक दिया और कहा देखना चाहता है क्या मिला मुझे? हाँ हुजूर दिखाइए। फरमाया आवाज दिए समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। समंदर की मछलियां अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो गई। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वजीर हैरत में कौन सा कारखाना नीचे लगा है कि सोने की सुई निकल रही? आपने जलाल में फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां अंदर गई, एक एक चांदी की सुई लेकर के आई। वजीर हैरत में के अंदर चांदी की भी फैक्ट्री लगी हुई है, चांदी की सुई लेकर के आई। अब आपने जलाल भरे लहजे में फरमाया मेरी वाली सुई वापस की जाए। एक मछली आई और अपने मुंह में आपकी वाली सुई लेकर के आई। आपने वो सुई अपने हाथ में ली, वजीर से फरमाते हैं देख लिया तूने? अरे जब मैं बादशाह था, जब मैं कुर्सी पे बैठा था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आज मेरा कहना ना मानती। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान वरज़ली साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह को राजी करो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने भी सिमनान की बादशाहत छोड़ी थी। सिमना का तख्त छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जहांगीर बनाया।
آئے آئے جب سے آپ نے سمنان کی حکومت چھوڑی، تخت چھوڑا، آپ کو جہانگیر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، غوث العالم آپ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس سوچیں، درگاہ شریف پہ لکھا ہوا ہے، آج بھی ان کے آستانے کی یہ شان ہے نیر شریف کی، کیسی بھی بیماری ہو جو لا علاج ہو، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، کہیں سے فائدہ نہ ہوتا ہو، چلا جائے کہ چھوچا شریف کی سرزمین پہ نیر شریف میں غسل کر دے، مخدوم پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا۔ سبحان اللہ، زندہ جو باد۔ کرامتوں کے منکر ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ولی اور نبی کچھ نہیں دے سکتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے بہرائچ لے آئے 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 آئے، سبحان لاؤ اللہ۔ میرے غازی کے آستانے پہ۔ جب غسل شریف کا پانی حوض میں جمع ہوتا ہے تو وہاں اندھے، کوڑی، اللہ سفید داغ کی بیماری والے لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں۔ اور آج بھی اس آستانے کی یہ شان ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ بے شک۔ میں نے لسٹ پڑھی تھی وہاں آستانے پہ شفا پانے والوں کی، تو اس میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے نام۔ سبحان اللہ، حق ہے، زندہ باد۔ سب سے پہلی کرامت جو میرے غازی کی ظاہر ہوئی وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ایک غیر مسلم کے تعلق سے ظاہر۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگرور کا جاسو یادو، جی جی، اللہ اللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ میرے غازی کے آستانے کی شان دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے سے کیا مل جائے گا، کیا ملتا ہے، یہ تو مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ معاذ تو اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے، اور وہ ولیوں سے ہوتے ہوئے نبی تک پہنچ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ آئے آئے آئے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، دیکھو سید سالار مسعود غازی کے آستانے کی شان۔ جاسو کی بی بی جس کی کوئی اولاد نہیں، ساس نے ایک دن تانا دیا اللہ کہ اگر اب کی کوئی خوشخبری سننے کو نہ ملی تو میں اپنے بیٹے سے تجھ کو ڈیورس دلوا دوں، اللہ تجھے طلاق دلوا دوں اور اپنے بچے کی دوسری شادی کروں۔ اللہ۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے لیکن یہ طلاق کا جو معاملہ آتا ہے نا، اس کو برداشت نہیں کرتی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند اگر کوئی کام ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق ہے، بے شک بے اللہ شک۔ جی جی، حق ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دیکھو میرے غازی کے آستانے کی شان۔ اتنے قرب میں آپ رہتے ہو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اس آستانے پہ بڑے بڑے اولیاء کرام گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، سبحان اللہ۔ پنجوں کے بل چلتے ہوئے نظر آئے۔ ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا، جن کو نظر آیا وہ ایڑیوں کے بل چلتے ہوئے آئے نظر آئے آئے۔ آئے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے۔ سفر نامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہے، ابن بطوطہ جس نے دنیا گھومی تھی وہ بھی آیا تھا غازی پاک کے آستانے پہ حاضری آئے دینے آئے کے آئے، لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آستانے کی شان ہی الگ ہے، اس آستانے کا تو مقام ہی الگ ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھا تھا حضور اس آستانے کی شان بتائیے، تو فرمایا میرے جیسے غوث العالم 70 غوث وہاں پر دربانی کرتے ہیں۔ آئے آئے آئے، یہ مقام ہے اس آستانے کا۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ مساجد ہو، مدارس ہو، اذانیں ہو، نمازیں ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ ہندوستان میں غریب نواز کے آنے سے تقریباً 100 سال پہلے سے یہ سالار مسعود غازی ہندوستان میں آئے۔ تاریخ پیدائش اگر آپ دیکھیں گے تو غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے اجمیر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے سید سالار مسعود غازی، مرتبے اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ۔ لیکن میرے غازی کی شان ذرا دیکھو، آپ وہاں جائیں گے گجرات کے اندر احمد آباد میں ایک جگہ ہے، حضرت جانتے ہیں احمد آباد میں ایک اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے، حضور شاہ عالم احمد آبادی گجرات، قطب عالم کے بیٹے۔ جی جی، آپ جانتے ہو حضور قطب عالم کون ہے؟ یہ حضور قطب